اور آج کی بائبل سٹڈی جو ہم سٹارٹ کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں، خروج کی کتاب اور اس کا 19واں باب، ایکسوڈس، بک آف ایکسوڈس چیپٹر 19، اس کی پہلی آیت سے۔ اور بنی اسرائیل کو جس دن ملک مصر سے نکلے 3 مہینے ہوئے، اسی دن وہ سینا کے بیابان میں آئے، اور جب وہ رفیدیم سے روانہ ہو کر سینا کے بیابان میں آئے تو بیابان ہی میں ڈیرے لگا لیے۔ سو وہیں پہاڑ کے سامنے اسرائیلیوں کے ڈیرے لگے، اور موسیٰ اس پر چڑھ کر خدا کے پاس گیا، اور خداوند نے اسے پہاڑ پر سے پکار کر کہا کہ تو یعقوب کے خاندان سے یوں کہہ اور بنی اسرائیل کو یہ سنا دے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا کیا، اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ تب موسیٰ نے آ کر اور ان لوگوں کے بزرگوں کو بلا کر ان کے روبرو وہ سب باتیں جو خداوند نے اسے فرمائی تھی بیان کی، اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے۔ اور موسیٰ نے لوگوں کا جواب خداوند کو جا کر سنایا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ، میں کالے بادل میں اس لیے تیرے پاس آتا ہوں کہ جب میں تجھ سے باتیں کروں تو یہ لوگ سنیں اور صدا تیرا یقین کریں۔ آمین۔ پہلے جو ہم نے بائبل سٹڈی کی اس کو ہم اگر حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، پارٹس میں، تو جب خروج کی کتاب شروع کی تو اسرائیل قوم کس میں تھے؟ مصر کے اندر۔ یعنی ایک حصہ، ایک پارٹ جو فرسٹ ہے وہ اسرائیل کا، بنی اسرائیل کا، ہمیں کہاں پر ملتا ہے؟ مصر کے اندر۔ اور دوسرا حصہ ہمیں خروج کی کتاب میں کہاں پر ملتا ہے؟ بیابان، بنی اسرائیل بیابان کے اندر۔ اور اب ہم خروج کی کتاب کا تیسرا حصہ جو ہے، تھرڈ پارٹ سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ کون سا حصہ ہے؟ سینا کے بیابان میں خداوند کی شریعت۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینا میں خدا کا بنی اسرائیل کے ساتھ عہد باندھنا، اور اس حصے کو ہم کہتے ہیں سائنیٹک کوویننٹ، یعنی سینا کا عہد، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینا میں عہد۔ تو یہ سینا سے سائنیٹک کوویننٹ، یعنی وہ عہد جو خدا نے کوہ سینا پر بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا، جو ہے وہ شریعت کو جو اس نے دی اس کی سٹڈی کریں گے۔ اور دوسری بات، خیمہ اجتماع کی ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اس میں کہانت کی سٹڈی کریں گے، اور خدا کی حضوری میں کس طرح کاہنوں کو جو ہے وہ خدمت کرنی اس کے تعلق سے۔ یعنی خدا جو ہے وہ موسیٰ کے ذریعہ سے بنی اسرائیل کو بتائے گا کہ کس طرح سے تم نے میرے لیے جو ہے میری حضوری میں تم نے خیمہ اجتماع بنانا ہے، خیمہ بنانا ہے، اور کس طرح تمہیں خیمہ کے اندر میری خدمت کرنی ہے۔ اور خیمہ کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس کائنات کا خالق اور مالک اسرائیل کے درمیان سکونت کرے۔
وہ اسرائیل کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اسرائیل کے درمیان میں رہنا چاہتا تھا. اور جب خیمہ اجتماع یا خیمہ ٹینٹ آف کویننٹ جب لگایا جاتا تھا، یا ٹیبرنیکل جس کو آپ کہتے ہیں، وہ لگایا جاتا تھا بنی اسرائیل کے درمیان میں، تو سب قبیلے اس ٹینٹ کے چوگرد چار چار کی تعداد میں، وہ چار مشرق میں، چار مغرب میں، چار شمال میں، چار جنوب کے اندر، اور درمیان میں کیا ہوتا تھا؟ خیمہ اجتماع، ٹیبرنیکل. تو خدا ان کے درمیان میں رہنا چاہتا، اور خدا ان کو مصر سے جو لے کر آیا ہے، نکال کر، انہوں نے کہاں جانا تھا؟ انہیں کوہ سینا کو جانا تھا، سینا کے بیابان میں ان کو آنا. بنی اسرائیل کا جو ٹارگٹ تھا، جو ان کو دیا گیا، موسیٰ کو دیا گیا کہ تو بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے کر آ، وہ کس کا تھا؟ کوہ سینا. اور موسیٰ نے یہی فرعون سے کہا کہ خدا یہوہ کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے. اور عبادت جا کر کہاں کرنی تھی؟ کوہ سینا یا سینا کے پہاڑ، سینا کے بیابان پر انہوں نے کیا کرنی تھی؟ عبادت کرنی تھی. کہ 3 مہینوں کا جو تھا وہ پروسیس تھا، 3 مہینوں کا سفر تھا، جو بنی اسرائیل کاٹ کر کہاں پر آئے؟ سینا کے بیابان میں. خدا سینا کے پہاڑ پر ان کو لے کر آیا. مقصد کیا تھا؟ عہد باندھنا تھا ان سے، ان کو اپنی شریعت دینی تھی، ان کو اپنے احکامات سکھانے تھے، اور سائنیٹک کویننٹ ان سے کیا کرنا تھا؟ باندھنا تھا. تو ڈیرے لگا لیے انہوں نے، جیسا ہم نے پڑھا، اور خدا نے پہاڑ پر سے موسیٰ کو پکارا اور کہا کہ تو یعقوب کے خاندان سے یوں کہہ. کس کے خاندان سے؟ یعقوب کے خاندان سے. جب ہم نے خروج کی کتاب کو شروع کیا، پہلی آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یعقوب کے بیٹوں کے نام یہ ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خروج کا مطلب ایک خارج ہونا ہے، نکل جانا ہے، ایگزٹ کرنا ہے، اور ایک جو عبرانی میں اس کا مطلب آتا ہے وی ایلے شیموت. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے نام یہ ہیں، یا نام یہ ہیں. کن کے؟ یعقوب کے بیٹوں کے نام. ابراہیم سے عہد باندھا ہے، اسحاق سے باندھا یعقوب، لیکن یعقوب سے خدا نے عہد باندھا کہ اب سے تو اسرائیل کہلائے گا، یعنی اسرائیل قوم، اسرائیل کے نام سے پچھلے بھی نامزد ہوں گے اور اگلے بھی نامزد ہوں گے. اور یعقوب اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ کہاں پر آیا ہے؟ مصر کے اندر آیا تھا. یعقوب کے خاندان، یعقوب اپنے خاندان سمیت مصر کے اندر آیا تھا، اور 400 سال انہوں نے مصر کے اندر گزارے، اور خدا نے نکالا ان کو. اور وہ سینا کے بیابان میں ہے تو خدا نے کیا ان کو پکارا؟ یعقوب کے خاندان. کیونکہ یعقوب اپنے خاندان کے ساتھ مصر میں آیا تھا. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا، ویالے شیموت ان کے نام یہ ہیں. تو اسی لحاظ سے خدا نے یہاں پر بنی اسرائیل کو کیا پکارا ہے؟ یعقوب کا خاندان. اور بے شک وہ ہے بھی یعقوب کا خاندان تھا. اور پہلے تھوڑے سے لوگ وہ ملک مصر میں گئے، 75 لوگ، لیکن اب وہ لاکھوں کی تعداد میں، 6 لاکھ تو مرد تھے، عورتیں، بچے، یعنی وہ لاکھوں میں جو ہے وہ بڑی قوم بن کر ملک
मिस्र से निकले तो खुदा ने कहा कि यकूब के खानदान से कह उनको सुना दे। तो सुनाना क्या था कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, और गोया तुमको उकाब के परों को पर बिठा कर मैं यहां पर ले आया। उकाब के परों पर, यानी उकाब जैसे उड़ता है, उकाब अपने बच्चों को अपने परों पर बिठा कर उड़ता है। उकाब की ये सिर्फ नेचर। उकाब अपने बच्चों को अपने परों पर उठाकर, उसको जाना हो किसी जगह पर, मुतबादल उसको जगह जाना हो, तो वो क्या करता है, अपने परों पर अपने बच्चों को बिठाता है और उड़ जाता है। उसी तशबीहन से, उसी बात को लेते हुए यहोवा ने कहा, मैं तुमको मिस्र से उकाब के, गोया उकाब के परों पर बिठाकर मैं तुम्हें यहां पर, यानी मैंने तुमको कुछ होने नहीं दिया। उकाब भी कुछ होने नहीं देता, बुलंदियों पर इतनी उड़ता है कि कोई उसको पकड़ ही नहीं सकता। तो खुदा का कहने का मतलब है, मैं तुम्हें सेफ एंड साउंड अपने परों पर बिठा कर लेकर आया हूं, और तुमने देखा कि मिस्रियों के साथ मैंने क्या क्या किया। सो अब तुम मेरी बात सुनो और मेरे अहद पर चलो, तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे। तो खुदा ने उनसे जो अहद बांधने जा रहा है, वो मैंने आपको बताया कि ये साइनेटिक कोवेनेंट बांधने जा रहा है। ये एग्रीमेंट होने के लिए जा रहा है। इस अहद को कहते हैं सुज़रैनिटी वेसल एग्रीमेंट, या सुज़रैनिटी या सुज़रैन वेसल ट्रीटी, या कोवेनेंट भी आप कह सकते हैं इसको। क्या मैंने कहा? सुज़रैनिटी वेसल ट्रीटी, या आप कोवेनेंट कह लें। इसका मतलब है इक्तदारे आला का अहद। इसका क्या मतलब है? इक्तदारे आला का अहद, जिसमें दो पार्टीज जो हैं वो क्या करती हैं, एक एग्रीमेंट करती हैं। ट्रीटी का मतलब ही जो है वो अहद है, एग्रीमेंट, कोवेनेंट में एक सुज़रैन है और दूसरा वेसल है। और ये वेसल, एक वेसल होता है बर्तन, ये वो वेसल नहीं है, ये है सब ऑर्डिनेट या मातहत। तो जो सुज़रैन है ये एक पार्टी है, और जो वेसल है ये एक पार्टी है। तो जब दोनों मिलते हैं तो वो एक ट्रीटी बनती है, एक कोवेनेंट बनता है, एक अहद बनता है, और उसको क्या कहते हैं? सुज़रैनिटी वेसल ट्रीटी, इक्तदारे आला का अहद। तो ये अहद क्या है कि एक सुपीरियर, सुप्रीम रैंक का बंदा जो है वो एक वेसल से जो है वो क्या करता है? अहद बांधता है। यानी एक किंग एक कौम से लो रैंक जिसका है उससे क्या बांध रहा है? एक अहद बांध रहा है। आप इस तरह कह सकते हैं कि एक किंग जो है वो कौम से जो उसके मातहत है, या जिसको वो चाहता है कि वो उसकी कौम बने, उसके साथ एक अहद बांधता है। कौम भी अहद बांधती है और किंग भी अहद बांधता है। तो किंग जो अहद बांधता है वो ये बांधता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, मैं तुम्हें खुराक दूंगा,
اور میں تمہیں اور بھی بینیفٹس دوں گا. ٹھیک ہے؟ کیا کنگ کہتا ہے؟ کنگ کا دنیا میں چلے جائیں، کنگ کا یہی ہے کہ وہ اپنی قوم سے کیا عہد کرتا ہے کہ وہ ان کو لے کر چلے گا، دشمنوں سے ان کی حفاظت کرے گا، ان کی خوراک کا بندوبست کرے گا، اور بھی جتنی چیزیں ہیں، انصاف جو ہے، عدل و انصاف، وہ بھی اس کو پرووائڈ کرے گا. سب بینیفٹس جس کی ایک رعایا کو، ایک قوم کو نیڈ ہے. اور ویسل جو قوم ہے جو اس کے ماتحت ہے، وہ بھی عہد کرے گی. وہ عہد کیا کرے گی؟ وہ عہد یہ کرے گی کہ وہ بادشاہ کی تابعداری میں چلے گی. بادشاہ کی تابعداری کے اندر وہ اس کے خلاف جو ہے وہ نہیں کوئی قدم اٹھائے گی. تو اس چیز کو جو ہم کہتے ہیں سوزرینٹی، ویسل، ٹریٹی یا کویننٹ، تو یہ خدا نے اس سے باندھا. کس سے؟ بنی اسرائیل قوم سے، یعقوب کے خاندان سے. اس کو باندھنا تھا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں گویا تمہیں عقاب کے پروں پر اپنی پروٹیکشن میں تمہیں لے کر آیا ہوں. تم نے دیکھا کہ میں نے فرعون سے کیا کیا کیا، کہ اس طرح تمہیں اس کے ہاتھ سے بچایا. مجھے اگر کنگ ماننا ہے تو پھر تمہیں میرے حکموں پر عمل کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ پھر تم میری خاص مملکت یا میری خاص ملکیت ٹھہرو گے. تو یہ اب سوزرین کنگ، سپریم اتھارٹی جو ہے وہ یعقوب کے خاندان سے کیا ہے؟ وہ مخاطب ہے. تم میری مقدس قوم ہوگے، تم میرے لیے جو ہو وہ کاہنوں کی مملکت ہوگے. تو جب موسیٰ نے سنایا یہ سوزرینٹی، ویسل، ٹریٹی یا کویننٹ، تو قوم نے، بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ ہم ایسا ہی کریں گے، ہم ایسا ہی کریں گے، ہم ایسا ہی. تو موسیٰ نے ویسے ہی بات کو خدا کے پاس پہنچا دیا کہ بنی اسرائیل کہتی ہے کہ ہم ویسا ہی کریں گے. اس کو سائنیٹک کویننٹ بھی کہتے ہیں، اور اس کو سوزرینٹی ویسل بھی ہم کہتے ہیں، ٹریٹی یا کویننٹ. تو اس کے اندر کنڈیشن پائی جاتی. یہ ایسے ہی نہیں، خدا کے سارے وعدے یاد رکھیں، کنڈیشن ان میں ہے. بے شک خدا کے وعدے سچے ہیں، وہ صادق ہے، وہ ہاں کے ساتھ ہیں، لیکن اس میں کنڈیشن پائی جاتی، شرط ہے. اور یہاں پر شرط کیا ہے؟ اگر تم، کیا ہے؟ کنڈیشن دے دی. جب ہم نے پڑھا جو مارا کے چشمہ پر جو تھا وہ جھگڑا ہوا، اور ایک پیڑ کی، ایک درختی لکڑی کو ڈالا اور وہ ٹھیک ہو گیا، اور یہوہ شافی کا خدا نے مکاشفہ دیا، یہوہ رافع. تو وہاں پر بھی کنڈیشن دی، اگر تم میری بات کو سنو، میرے حکموں کو پر عمل کرو، اور وہی کام کرو جو میری نظر میں بھلے ہیں یا بھلا ہے، تو میں مصر کی بیماریوں کو تمہارے پاس آنے بھی نہیں دوں گا. کنڈیشن ہے، حکم کو ماننا. اگر تم، یعنی جو ویسل ہے، اس کو حکم کو ماننا ہے، تو جو سوزرین ہے یا کنگ ہے وہ اس کی بات کو یا پورا کرے گا. ایگریمنٹ، کنڈیشن، شرط. اگر تم میری بات کو مانو گے، اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے، تو پھر قوموں میں سے تم میری خاص ملکیت ٹھہرو گے. کیا؟ ملکیت ٹھہرو گے. تو ملکیت کا مطلب ہے پوزیشن. جیسے یہ گھر ہے، میں کہتا ہوں میری ملکیت ہے، یہ گھر میرا ہے، اس کا مطلب ہے میں اس کا مالک ہوں. قومیں تو بہت ساری دنیا میں تھی. ملک کنعان میں قومیں پائی جاتی تھی، اور مدیان میں قومیں پائی جاتی تھی، اور مصر قوم تھی، اور بھی قومیں پائی جاتی تھی.
लिखा है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर मानोगे, ये शर्त पहली है खुदा के हुक्म को मानना, खुदा की बात को गौर से सुनना, उसकी नजर में जो भला है वो ही काम करना। तो फिर जो है वो आगे क्या कहता है कि तुम मेरी खास मिल्कियत, यानी फिर तुम मेरी जो हो वो खास मलकियत ठहरोगे, मेरी पोजेशन ठहरोगे, और मैं तुम्हारा ओनर, मालिक, किंग कहलाऊंगा। खास मलकियत का यह मतलब है, हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें मायने पता नहीं होते, मीनिंग्स हमें पता नहीं होते। क्या है? फिर मैं तुम्हारा मालिक होऊंगा, फिर तुम मेरी कौम होगे, फिर तुम मेरी जायदाद होगे, मेरी मिल्कियत ठहरोगे। कौमें तो बहुत सी हैं, लेकिन तुम मेरे हुक्मों पर मानकर यह जाहिर करोगे कि मैं तुम्हारा किंग हूं, और मैं भी मानूंगा कि यह मेरी मलकियत है। हालेलुया। और आगे क्या है? आगे फिर तुम मेरे लिए काहिनों की मुमलिकत, काहिनों की मुमलिकत। काहिनों की मुमलिकत का मतलब है किंगडम ऑफ प्रीस्ट, किंगडम ऑफ प्रीस्ट, यानी काहिनों की ममलिकत, काहिनों की बादशाही। किंगडम का क्या मतलब है? बादशाही, जिसका मतलब है किंगडम ऑफ प्रीस्ट, काहिनों की बादशाही, काहिनों की मुमलिकत। यानी पूरी कौम को कहा गया कि तुम मेरे लिए क्या होगी? काहिनों की मुमलिकत ठहरोगे। तो काहिन क्या करते हैं? काहिन खुदा की खिदमत करते हैं। तो उनको कहा गया सारी कौम को कि तुमने मेरी खिदमत करनी है, मेरे हुक्मों पर अमल करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना है और मेरी खिदमत करनी है, तुमने प्रस्तिश करनी है, मेरी खिदमत करनी। तो बाद में हम देखते हैं कि काहिनों को चुना भी गया, लेकिन बनी इस्राएल की सारी कौम को क्या कहा गया? काहिनों की मुमलिकत, यानी सबको काहिनों से तशबीह दी गई। चूंकि बनी इस्राएल सारी कौम खुदा की इबादत करने वाली थी या खुदा की हजूरी में उसके काम करने वाली थी, तो खुदा ने क्या कहा कि तुम मेरी खास मिल्कियत और काहिनों की मुमलिकत। और फिर क्या कहा? एक मुकद्दस कौम, एक मुकद्दस कौम ठहरोगे। मुकद्दस कौम का मतलब है पाक, कॉन्सिक्रिएटेड। क्या है? कॉन्सिक्रिएटेड। तुम मेरे लिए मुकद्दस कौम ठहरोगे। मुकद्दस पाक का जो मतलब बनी इस्राएल के लिए आता है, हमारे लिए भी आता है, वो ये है कि दुनिया की कौमों में से खुदा के लिए अलग किए गए लोग, जिनको हम क्या कहते हैं? चूजन वन, चुने हुए लोग। खुदा ने पूरी दुनिया में से किसको चुना? इब्राहिम की नस्ल को चुना, याकूब की नस्ल को चुना। याकूब की नस्ल को, बनी इस्राएल कौम को चुना पूरी कौमों में से, और उनको क्या ठहराया? मुकद्दस। और उनको कहा अपने आप को पाक करना, मेरे लिए पाक करना। यानी जो खुदा के हुक्मों पर अमल करता है वो ही पाक है, और कोई पाक नहीं है। यानी जो खुदा की हजूरी में ताबेदारी से चलेगा, इसका मतलब है कि उसने दुनिया से अपने आप को अलग कर कर खुदा के लिए क्या कर दिया है? मखसूस कर दिया। इसका यह मतलब। तो इस्राएल ने क्या कहा? ऐसा ही हम करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने ऐसा नहीं किया। खुदा बेजार हो गया इस कौम से। बियाबान के अंदर बेईमानी की हालत में वो आ गए, और खुदा ने कहा गर्दन कश कौम है,
गर्दन कश कौम का मतलब ढीठ। मैंने इनसे सुजरैनिटी वेसल ट्रीटी बांधा था, अहद किया था, लेकिन ये मेरे हुक्मों पर चले नहीं। इस्राएल ने खुदा के सब्बतों को नहीं माना, खुदा की हजूरी में उसकी कुर्बानियों को नहीं माना। बाइबल में लिखा है कि वो होंठों से तो मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन उनके दिल मुझसे दूर हैं। और बाज ऐसे भी थे जो हैकल के अंदर कुर्बानियां लेकर आते थे और बुतों के लिए भी वो कुर्बानियां चढ़ाते थे। गुनाहगार दुनिया में भी सर फसाया हुआ है और खुदा के साथ चलने का भी वो दावा करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आ गया उस कौम के लिए। खुदा का बेटा गोया खुदा खुद इंसान बनकर उनके दरमियान में आ गया। जो पहले खैमा इज्तिमा में उनके दरमियान में सुकूनत करता था, अब वो इंसानी बदन के अंदर उनके साथ रहने के लिए आ गया। उनको कलाम सुनाया, उनके अंदर अंजील की मुनादी की, उनको शिफा दी, मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को अच्छा किया, तो भी उस कौम ने यीशु मसीह की नहीं सुनी। यहोवा पर वो ईमान लेकर नहीं आए, उसके बेटे पर, और कहलाते वो बनी इस्राएल कौन थे, इब्राहिम की नस्ल। और वो समझते थे कि हम खुदा के अहद के लोग हैं, जो खुदा ने मूसा के जरिया से हमसे बांधा। हम वो लोग हैं, हम अहद खुदा ने हमसे बांधा हुआ है, इसीलिए सारे बेनिफिट्स भी हमारे हैं। और गैर कौमों को वो क्या कहते थे? नापाक, डॉग का मतलब है नापाक। खुदा यीशु मसीह आ गया, उन्होंने नहीं माना। तो खुदा ने भी उस कौम को जिनसे उसने जो अहद बांधा था, इक्तदार आला का अहद बांधा था, साइनेटिक कोइनेंट सीना का अहद जो बंधा हुआ था, जब वो नहीं चले खुदा की हुजूरी में, जब उन्होंने अहद शिकनी की, तो खुदा ने उनको रिजेक्ट किया और उनकी जगह पर किनको चुन लिया? गैर कौम। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ बनी इस्राएल कौम के लिए जान नहीं दी, उसने दुनिया की सब कौमों के लिए जान दी। और खुदा ने सब कौमों के लिए जो था वो नजात का दरवाजा खोल दी। और इब्राहिम की नस्ल से जो थी वो कौन सी कौम आई? बनी इस्राएल कौम। हालेलुया। बनी इस्राएल कौम इब्राहिम की नस्ल से, और उन्होंने बात खुदा की नहीं मानी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम इब्राहिम की नस्ल में से होते तो तुम मेरी सुनते। जब बनी इस्राएल ईमान लेकर नहीं आए, अहद शिकनी भी कही, खुदा की हजूरी में उसके हुक्मों पर नहीं चले, तो खुदा ने फिर गैर कौमों के लिए दरवाजा खोल दिया और यीशु मसीह के खून से कलीसिया ने जन्म लिया। इब्राहिम के सुलभ से बनी इस्राएल कौम ने जन्म लिया, और यीशु मसीह के सुलभ से जब उसके पहलू में, उसकी पसली पर भाला मारा गया, पानी और खून निकला, वहां से जो था कलीसिया ने जन्म लिया। जैसे आदम की पसली से औरत निकली, वैसे ही यीशु मसीह की पसली से कलीसिया ने जन्म लिया। यानी हकीकी बनी इस्राएल कौम जो मेरे कलाम को सुनता है, जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है, जो मेरी बात को सुनता है, हकीकी इस्राएली वही है, हकीकी इब्राहिम का बेटा वही। हालेलुया। वही इब्राहिम की नस्ल कहलाई। पलूस रसूल रोमियो के खत में बड़ी डिटेल देता है कि हकीकी इस्राएली वो है जो खुदा के हुक्मों पर अमल करता है, जिस्मानी नहीं, रूहानी इस्राएली। और चूंकि पतरस रसूल खुदावंद यीशु मसीह का जो शागिर्द था, वो शरीयत से वाकिफ था, उसको पता था कि खुदा ने बनी इस्राएल के साथ जो है वो अहद बांध रखा है। और बनी इस्राएल को क्या कहा हुआ है?
मेरी खास मलकियत ठहरोगे। तुम मेरे लिए काहिनों का क्या होगे? काहिनों की ममलिकत। तुम मेरे लिए क्या ठहरोगे? मुकद्दस कौम। तो पतरस जो है, क्योंकि शरीयत को सुनने वाला था, उस पर अमल करने वाला भी था। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसको बुलाया, ये नहीं ऐसे ही वो शरीयत से वाकिफ नहीं, सिर्फ मछलियां पकड़ने वाला, वो यूहन्ना के शागिर्द था पहले, इंद्रियास, और ये यूहन्ना के शागिर्द थे जो बपतिस्मा देता था। और पतरस शरीयत को, ये लोग तो 12 साल की उम्र में इस्राएल का बच्चा जो था वो सारी शरीयत के हुक्मों को जान लेता था, शरीयत का पता होता था। आज भी ऐसा ही। और बड़े फकी फरीसी जो लोग थे, ये टीचर थे, ये शरीयत के टीचर जो शरीयत को पढ़ाते थे, तालीम देते थे। और जो सदूकी थे, ये भी तालीम देते थे। और सरदार काहिन सदूकियों में से आते थे, और हैकल का कंट्रोल भी किनके पास था? सदूकियों के पास। लेकिन जो पतरस है, ये शरीयत को जानता था। और जब यीशु मसीह में आ गया और होली स्पिरिट नाजिल हुआ, वास करने लगा, रूह को बचाने लगा और खुदा की कलीसिया में शामिल करने लगा। और जब इसने पतरस अपना पहला खत लिखा, तो दूसरे बाब में ये कलीसिया को कहता है, ईमानदारों को कहता है, गैर कौम के लोगों को कहता है, क्या कहता है? कि तुम बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, खुदा की खास मलकियत और मुकद्दस कौम। हालेलुया। मैं आपके सामने ये हवाला पढ़ता हूं, पतरस का पहला खत, उसका दूसरा और उसकी 9वीं आयत। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम, ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। हालेलुया। तो क्या कहता है? तुम एक मुकद्दस बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत। हालेलुया। तो फिर खुदा ने अहद जो था अपने बेटे के वसीला से कलीसिया के साथ बांधा। पहले किसके साथ बांधा? बनी इस्राएल के साथ। फिर किसके साथ बांधा? कलीसिया के साथ। यीशु मसीह ने अहद बांधा किससे? अपने खून के वसीला से। और वही बात कि अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करेगा तो वो क्या कहलाएगा? बरगजीदा नस्ल। बरगजीदा का मतलब है चूजन नेशन, चूजन जनरेशन। बरगजीदा का मतलब है चुने हुए लोग। क्या मतलब है? चुने हुए लोग। ये किनको कहा जा रहा है? ये गैर कौम के लोगों को, जिन्होंने ईमान ले आए यीशु मसीह पर। इनमें यहूदी भी शामिल थे, ये नहीं कि सिर्फ वो, लेकिन बड़ी मेजॉरिटी जो थी वो गैर कौमों की जो थी, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल उन्होंने किया और नजात पाई। खुदावंद यीशु मसीह के खून के अहद में शरीक हो गए। और हम जब अब यीशु मसीह पर हमने इकरार किया, ईमान लेकर आए, इकरार मुंह से किया जाता है, ईमान दिल से लाया जाता है। और ईमान लाने का मतलब है उसकी ताबेदारी में चलना। उसने यही कहा कि मेरे पीछे हो तो तुम मेरे शागिर्द, मेरे पीछे हो लो तो तुम मेरे। कंडीशन, शर्त। और शागिर्द क्या करते हैं? शागिर्द अपने उस्ताद की बात को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। उसको जो है वो ये नहीं कि सुने ही ना, उस्ताद कहे जी बाइबल स्टडी में आओ, आए ना, चर्च आओ, चर्च ना वो बंदा पहुंचे, छुट्टी करके बैठा हो, कहे जी मैंने जॉब पर जाना था, जी मेरे पेपर है,
जी मैं घर का काम, मैं जी बहुत थक गया हूं, मैंने पैसे कमाने थे। वो शागिर्द नहीं हो सकता। ट्रू शागिर्द वही है जो अपने मास्टर, अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चले। पतरस वगैरह पीछे नहीं हटे। पतरस को कहा, जब उसके यीशु मसीह के शागिर्द बात छोड़कर चले गए, यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब अगर आप पढ़े तो शॉर्ट में आप बताऊंगा, छोड़कर चले गए, 12 रह गए। उसने 12 को कहा, क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? पतरस बोला, कैसे तुझे छोड़ते, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। नहीं छोड़ के गया, उसके अहद में पक्का बंधा रहा, यहां तक कि उसने जो थी सलीबी मौत, उल्टी सलीब उसको दी, कबूल कर ली। उसने कहा नहीं हटूंगा। अहद, उसने कहा तुम बरगज़ीदा नस्ल हो, खुदा की चुनी हुई, खुदा ने तुम्हें अपने बेटे यीशु मसीह के खून से चुन लिया है। जब चुन लिया है, जब बनी इस्राएल को चुन लिया, उनको बरगज़ीदा किया और उनको कहा अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो फिर साथ में तब तुम मेरी जो हो वो खास मलकियत ठहरोगे। किसमें? कौमों में से। और साथ में कहा सारी जमीन मेरी है, यानी सारी कौमें मेरी है, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी मलकियत होने के लिए चुना है। दुनिया सारी, कौमें सारी खुदा की है, लेकिन खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से गैर कौम वालों को चुन लिया। इस्राएल कौम भी जो इब्राहिम की नस्ल से है, जिसमें वो भी शामिल होंगे, लेकिन पहले जो था वो किन्हों ने कबूल कर लिया? गैर कौम। उनके लिए जिन्होंने कबूल किया है, अहद किया है, सुज़रैनिटी वेसल ट्रीटी में शामिल हो गए हैं, यीशु मसीह के खून के वसीला से उनको कहा गया कि तुम बरगज़ीदा नस्ल, यानी यीशु मसीह में तुम चुन लिए गए। शाही काहिनों का फिरका हो तुम। किनको? कलीसिया। गैर कौम से जो आए, आप और मैं भी कोई यहूदी नहीं है, कोई इस्राएली नहीं है, गैर कौम के थे, लेकिन यीशु मसीह के बेवसीला से हम खुदा के पास आ गए हैं। हालेलुया। खुदा के पास आ गए हैं, और जब आ गए हैं उसके खून के वसीला से, जिस तरह उनको कहा गया कि तुम काहिनों की क्या हो? मुमलिकत हो, तो हमें भी कहा गया कि तुम काहिनों की मुमलिकत हो। हालेलुया। आप और मैं काहिन, हम काहिन चुने गए किस लिए? खिदमत के लिए। कलीसिया, आप भी काहिन हैं, आप चुने गए हैं ताकि कलीसिया में उसकी खूबियों का बयान करें। हालेलुया। प्रस्तिश करें, खादमों की ताबेदारी के अंदर चलें, ना कि अपनी मनमानियों की। और फिर कहा गया कि तुम क्या होगे? तुम मुकद्दस कौम। हम मुकद्दस कौम हैं, हम पाक ठहरा दिए गए हैं यीशु मसीह के खून से। उसने हमें बेऐब बेदाग कर दिया है। हालेलुया। और हमें अपने पास बाप ने बुला लिया है। हालेलुया। मसीह में हमें आसमानी मुकामों में बिठा लिया है। मसीह जब खुदा के साथ उसके तख्त पर बैठा है राइट हैंड में, तो गोया मसीह में आप और मैं आसमान पर बैठ चुके हैं, यानी कि तख्त पर हम भी बैठे हुए जब हमारा बादशाह। और यहां पर जो मैं आपको मुकाशवा देने वाला हूं, शाही काहिनों का फिरका, शाही काहिनों के फिरके से मुराद है किंगडम ऑफ प्रीस्ट, काहिनों की बादशाही। आप और मैं जो है वो काहिन है। अगर आप मुकाशवा की किताब पढ़े, मुकाशवा की किताब उसके पहले चैप्टर में आया है कि जो हमारे से मोहब्बत रखता है, जिसने हमसे मोहब्बत रखी, उसने अपने खून के वसीला से हमको हमारी गुनाहों से मखलिसी बख्शी। हालेलुया। जो हमसे मोहब्बत रखता है हमारा यीशु मसीह, जो हमसे मोहब्बत रखता है, उसने अपने खून के वसीला से हमको हमारे गुनाहों से मखलिसी बख्शी। उसने हमें
बादशाही भी और खुदा और बाप के काहिन भी बना दिया। हालेलुया। किसके वसीला से? खून। और फिर जो है यूहन्ना आरिफ लिखता है मुकाशवा 5 बाब में कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही इज्जत के लायक है, सिताइश के लायक है, प्रस्तिश के लायक है। और वहां पर यह भी लिखा है कि उसने ज़िबा होकर अपने खून से दुनिया की सारी कौमों में से, सारे कबीलों में से, अहले लुगत में से उसने लोग जो है वो चुन लिए हैं ताकि उनको बादशाही भी अता करे और काहिन भी बनाए। दुनिया की सारी कबीलों, सारी कौमों, अहले जुबान। हालेलुया। ये काहिनों की बादशाही है। और बादशाह कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारा बादशाह है और वो हमारा बड़ा सरदार काहिन है। जिस तरह काहिन हारून बड़ा सरदार काहिन था ना, उसके नीचे वो काहिन थे जो उसकी ताबेदारी में चलते थे। लेकिन हमारा बड़ा सरदार काहिन जो हमारा बादशाह यीशु मसीह है, उसकी बादशाही में हम काहिन हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शाही काहिनों का फिरका, शाही काहिनों की मुमलिकत आप और मैं और सारी कलीसिया। और लिखा है कि उसने तुम्हें मुकद्दस कौम ठहराया है। कलीसिया जो यीशु मसीह के खून से धुली हुई है वो ही मुकद्दस है और कोई कौम मुकद्दस नहीं। इसलिए कि तुम खुदा की खूबियों का बयान करो, इसलिए हमें बुलाया है, इसलिए बनी इस्राएल को चुना, उनके साथ अहद बांधा कि वो जमीन पर खुदा की खिदमत करें, खुदा की इबादत करें, खुदा के हुक्मों पर चलें और खुदा की खूबियों को जाहिर करें ताकि दुनिया जान ले कि दुनिया में अगर कोई खुदा है तो वो यहोवा। आप और मुझे चुना है गैर कौमों में से, जो निकाल कर लेकर आया है। आपको मुझे इसलिए चुना है ताकि हम कलीसिया में खुदा की हम्द, उसकी सताइश, उसकी प्रस्तिश के साथ रास्तबाजी के काम करने वाले हों और दुनिया में खुदा का, यीशु मसीह का जलाल जाहिर करें कि वो ही बादशाह है, यहोवा ही बादशाह। इसलिए पहले तुम उम्मत नहीं थे, अब तुम उम्मत हो। हम पहले उम्मत नहीं थे, सिर्फ बनी इस्राएल कौम उम्मत थी। होसिया की किताब में, जिसको मैंने कहा कि करेक्टली क्या कहते हैं, होसी, इंग्लिश में होजी कहते हैं, उसका मतलब कि उसमें उस किताब में आया है कि तुम उम्मत नहीं हो, तुम मेरे लोग नहीं हो। एक जगह पर कहा गया तुम मेरे लोग, और फिर लिखा है कि तुम जिंदा खुदा के बेटे कहलाओगे। हालेलुया। क्या कहलाओगे? तुम जिंदा खुदा के बेटे, तुम मेरे लोग नहीं हो। फिर कहा तुम मेरे बेटे कहलाओगे, तुम जिंदा खुदा के। इब्राहिम से अहद था कि तेरी नस्ल जमीन पर रेत के जर्रों की तरह इनका शुमार होगा। बनी इस्राएल ने तो रिजेक्ट कर दिया। वो वैसे भी अब भी देख ले तो एक छोटा सा मुल्क है इस्राएल, लेकिन जो बात खुदा कह रहा था कि गैर कौम वालों को भी मैं अपने कौम में लेकर आऊंगा, किसके जरिए से? उसकी नस्ल के वसीला से कौमें बरकत पाएंगी। उसकी नस्ल गोया इसहाक ना ठहरा, यीशु मसीह, जिस पर ईमान लाने से हम डायरेक्ट इब्राहिम की नस्ल में शरीक हो जाते। तो क्या कहलाया? तुम मेरी लोग नहीं हो, तुम मेरी उम्मत नहीं हो। कहा तुम जिंदा खुदा के बेटे कहलाओगे। तो ये जो है वो पतरस कह रहा है कि तुम उम्मत नहीं थे, लेकिन अब तुम उम्मत हो। हालेलुया। तुम पर रहमत नहीं हुई थी, लेकिन यीशु मसीह के वसीला से अब तुम पर रहमत हो चुकी।
اور پالوس ہوسیا کا جو ہے وہ ریفرنس کوٹ کرتا ہے رومیو کے خط میں، اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ تم پہلے میری پیاری نہیں تھی لیکن اب تم میرے پیاری ہو. پہلے تم میری امت نہیں تھے، پہلے تم میرے لوگ نہیں تھے، لیکن اب تم میرے یعنی زندہ خدا کے تم بیٹے کہلاؤ گے، اور آپ اور میں زندہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہم نہ صرف بنی اسرائیل قوم میں جڑ گئے، اس قوم کے کہلاتے ہیں، بلکہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بھی کہلاتے ہیں. جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا، لے پالک ہونے کی روح نے یعنی ہولی اسپرٹ نے ان کو کیا کہا؟ بیٹا. اب تم غلام نہیں بلکہ خدا کے گھرانے کے ہو گئے. اب تم غلام نہیں بلکہ اس کے بیٹے ہو گئے ہو. کس کے وسیلہ سے؟ اسپرٹ آف اڈاپشن کے ذریعے سے، وسیلہ سے، لے پالک روح کے وسیلہ سے اس نے ہمیں یسوع مسیح میں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لی. اس لیے ہم اس کو اے ابا کہہ کر پکارتے ہیں. ہاللویا. اے ابا کہہ کر پکارتے ہیں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. بنی اسرائیل کو ہم نہیں کہتی تھی جیسا وہ بیٹا ہے ویسے ہی اس کے ہم میراث بنا لیا ہے یسوع مسیح کے یہوہ باپ نے. جیسے اس کی میراث ہے وہی میراث اب ہماری بھی ہے. ہاللویا. تو اس طرح سے خداوند پاک نے، یہوہ نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں اپنے عہد میں شامل کر لیا ہے. یہ نئے خون کا عہد ہے. اس میں آنے والا برگزیدہ ہو جاتا ہے، کاہنوں کے فرقہ میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی بادشاہی بھی پاتا ہے اور کاہن بھی بن جاتا ہے. تو ہمیں بنی اسرائیل کی طرح عہد شکنی نہیں کرنی. جو عہد شکنی کرے گا وہ ریجیکٹ ہوگا، کیونکہ عہد میں ہمیشہ کنڈیشن ہوتی ہے. اگر تم میرے حکموں پر چلو گے تو میری خاص ملکیت، آپ اور میں خدا کی خاص ملکیت. خدا کہتا ہے یہ میری ملکیت ہے، یہ میری پوزیشن ہے، میں اس کا مالک ہوں. یسوع مسیح کہتا ہے یہ میری ملکیت ہے کیونکہ یہ میرے پہلو سے نکلی ہے، میرے پہلو سے اس نے کیا لیا ہے؟ جنم لیا.